کل کی مجلس میں چاند گرہن کے متعلق بات کی گئی۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ باتوں کو بڑے غور سے سنا، اس پر پھر عمل کیا، نماز خصوص کی ادائیگی کی گئی، ذکر و اذکار کیا گیا، دیگر وظائف جس کو جتنا وقت ملا وہ کرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کاموں پر ایسے ہی قائم و دائم رکھے۔ کل ایک بات آئی تھی، حروف صوامت۔ حروف صوامت انہی میں سے ایک لفظ ہے قرآن کریم کا پہلا پارہ الف لام میم کا، وہ لفظ ہے الف لام میم، وہ بھی حروف صوامت میں آتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے سوالات کیے بذریعہ واٹس ایپ، بذریعہ ای میل، فون بھی آئے لوگوں کے۔ جنات کے سب لوگ دیوانے ہیں، جنات کو تابع کرنا۔ میرے دوستو، وہ بڑے لوگ تھے، ان کی روحانیت ان کی زندگی کے اندر غالب تھی۔ کوئی عملیات نہیں کرتے تھے بلکہ شب بیداری کیا کرتے تھے۔ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ، بہت نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، تقریباً 1 درجن علماء اچھے اکابرین کے معالج بھی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے۔ انہیں کا لگایا ایک پودا جامعۃ الامام ضیاء الرحمن کے نام سے گولپور کے اندر قائم ہے، اس کو فی الحال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی دعا حضرات کریں۔ اب بات کرنی ہے صرف، میں نے شروع میں بتایا تھا پہلی ویڈیو میں، مجمع البحرین کا ایک گروپ اس چینل کے اندر بنایا جائے گا۔ مجمع البحرین 2 سمندروں کا اجماع، اس میں ہمارے کرم فرما مشفق و مربی حضرت مفتی افتخار الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اور ہمارے نزدیک میں خوشحال میاں صاحب رحمہ اللہ، ان دونوں کے عملیات کو اس چینل پر بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ چینل صرف مجمع البحرین کے نام سے ہی بنایا گیا ہے، نام اس کا رکھا ہے ارمغان وظائف۔ تو آپ مکمل ویڈیو دیکھا کریں بغیر اسکپ کیے، لائک ضرور کر دیا کریں، اور یہ عمل جو آج بتانے والا ہوں الف لام میم، اس کے متعلق جو حضرات یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ اپنا نام، اپنا موبائل نمبر کمنٹ میں لکھ دیں، اللہ الصمد لکھنے کے بعد۔ اس کا کوئی وقت طے نہیں ہے، دن میں ہو یا رات، مہینے کا کوئی بھی دن ہو، شرط یہ ہے کہ جمعہ، بدھ اور جمعرات کا دن ہو، بس۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دن کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جو ہے جمعہ ہے۔ تو اس میں ہمیں اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے صدق مقال بھی ہو، عقل حلال بھی ہو، اور پرہیز کیا جائے گا اس کے اندر گوشت، لہسن، پیاز، انڈا اور گیہوں کی روٹی، جو کی روٹی کھا سکتے ہیں، کھجور، فروٹ وغیرہ کھا سکتے ہیں، اس عمل میں اجازت ہے، گیہوں کی روٹی نہ کھائی جائے، گوشت نہ کھایا جائے کوئی بھی۔ 3 دن کا تقریباً یہ عمل ہے۔ اس عمل کو آپ بہتر وقت تو ہے ظہر کے بعد، اس میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کرنے کا، نیت اپنی صاف ہونی چاہیے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد 1 تسبیح درود شریف کی پڑھیں، اپنا حصار پہلے کر لیں۔ حصار میں آیت الکرسی، چاروں کل پڑھے جاتے ہیں، اور بھی دوسری دعائیں ہیں، شاہت الوجوہ، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم انی مغلوب فانتصر، یہ بھی ایک دعا ہے۔ بوقت حصار اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں 11 مرتبہ، چاروں کل 3 مرتبہ، آیت الکرسی جو ہے 11 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور یہ دعا میں نے بتائی آپ کو، شاہت الوجوہ، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم انی مغلوب فانتصر، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔
फिर आप बैठ जाएंगे हिसार के अंदर। डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में अमल कर रहे हैं, रात में अमल नहीं कर रहे। तो इस अमल को आप करेंगे अलिफ लाम मीम, इसको 4100 मरतबा पढ़ेंगे, 4100 मरतबा अलिफ लाम मीम ऐसे पढ़ेंगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम एक तस्खीर खलाइक का एक नक्श है हमारे पास, वो हम दिया करते हैं इस अमल को करने वालों के लिए। वो इस अमल के लिए ख़ास है। तो इस अमल के करने वाले हजरात पहले राब्ता ज़रूरी है, वो नक्श आपको दे देंगे। नक्श देने के बाद इंशाअल्लाह फिर आप अमल करेंगे। 3 दिन का ये अमल है। तकरीबन पहले दिन हाज़री हो या ना भी हो, खुशबू या बदबू आ सकती है आपको। जैसे आएगी तो आपका राब्ता रहेगा हमसे, तो आप बता देंगे। इंशाअल्लाह जो जिस लायक हम हैं आपकी रहबरी फरमाते रहेंगे। और उसके बाद दूसरे दिन हाज़री शुरू होगी। लालच आपके सामने आ जाएंगे, पैसों के लालच, लग़वियात के लालच, सारी बातें आप समझ रहे होंगे, मैं सारी बातें नहीं कर सकता, वो सब आ जाएंगे सामने। तो आप अपने दिल को थाम के रखें, सब्र से रहें। उसके बाद तीसरे दिन या दूसरे दिन आखिर में आपके सामने हाज़री होगी। क्या चाहते हैं आप? शादी करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ताबे करना चाहते हैं? आप बिल्कुल क्लियर से मना कर दें, ना शादी ना ताबे। क्योंकि हम लोगों का इतनी ताकत हमारे पास नहीं है कि हम उन्हें ताबे कर सकें इस वक्त। वो बड़े अकाबरीन थे जो ताबे करके चले गए, मगर वो सब के सब उनके अमलियात ने, उनके रूहानियत ने उनको महफूज रखा हर चीज़ से। महफूज रहे। अल्लाह उन सब की, हमारे अकाबरीन की कब्रों को नूर से भर दे, करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा दे। उनके लगाए हुए पौधों को दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। तो अमल आपका तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपके सामने 3 शर्तें आएंगी। ताबे करने को आपने साफ मना कर दिया, लालच आपको मिला, लालच भी आपने नहीं लिया, शादी को आपने मना कर दिया। अब वो पूछेंगे हमें क्यों बुलाया, हमसे क्या आपको चाहिए, क्या आप हमसे चाहते हैं। ये बातें सामने आएगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ दोस्ती की बात रखनी है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का सदका वास्ता दे करके, उनकी कसम दे करके कि आप मुझसे कभी धोखा नहीं करेंगे, मेरी दोस्ती में कभी दगा मुझे नहीं देंगे, सारे वादा वईद हो जाएंगे। होने के बाद फिर आपको कोई निशानी या कोई सिस्टम वो बताएंगे। आपको एक शर्त बताएंगे कि आपको फ़ला कुरान करीम की आयत इतने मरतबा इतने वक्त पढ़नी है। आप बिल्कुल मना कर देंगे। इंसान ख़ताओं से भरा हुआ है, बिल्कुल मना कर देंगे। पैसे आपके सामने पेश किए जाएंगे, पैसों को मना कर देंगे। शादी की बात रखी जाएगी, वही मना कर देंगे। क्योंकि आमतौर से ये सब काम जब आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको जानी माली नुकसान हो सकता है, बल्कि होता है। उससे परहेज़ करें इन तीनों बातों से और अमल अपना करें। 3 दिन का सिर्फ अमल है। तस्खीर खलाइक का जो नक्श है वो आप हमसे ले लेंगे, अपने बाजू पर, दाने बाजू पर उसको बांध के अमल करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आपकी हाज़री होगी, आपको निशानी मिल जाएगी, ताल्लुकात वसी हो जाएंगे। आपको सब बता देंगे कैसे कैसे आपको हमें बुलाना है, क्या आप कब आप ये कहेंगे तो हम आएंगे, कितने वक्त के लिए आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके नेक कामों के अंदर आपको सिर्फ ये कहना है कि मेरे नेक कामों के अंदर आपको मेरी मदद करनी है। ये आप बात रखें और रखने के बाद इंशाअल्लाह आपका ये अमल तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। फारिग होने के बाद 100 बार दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद उठ जाएं, आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब इस वजीफ़े को आप मुस्तकिल करना है। अलिफ लाम मीम को कम से कम 313 मरतबा मुस्तकिल पढ़ना है। ये आपका विर्द रहेगा अमल को बाकी रखने के लिए। और अमीन हज़रात जो अमल करना चाहें, इसको अपने अमल में लेना चाहें, वो राब्ता कर लें। मज़ीद हमारी वीडियो को बहुत आगे तक पहुँचाएँ, इसमें हमारे मददगार बने, ताउन करें, हमारा ताउन भी इसके अंदर करें।
वीडियो को स्किप न करके मुकम्मल देखा जाए और इस अमल को किया जाए। मुख्तसर सा अमल है, अभी शायद दूसरा अमल इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा आपको करीब ही। ये अमल आपका हो गया। एक ज़रूरी बात और कर दूँ मैं आपसे, अभी हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया था। दोस्त भी बहुत करम फरमा दुबई में रहते हैं, उनसे आज मुलाकात फ़ोन पे हुई। तो वो जिस वक्त इंडिया में थे, अपने घर पे थे, बहुत परेशान थे, कभी कभी उनसे मुलाकातें हुआ करती थी। आज उनका अचानक फ़ोन आया तो बड़े खुश हैं। कई मकानों के मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी उनके पास आ गई है। तकरीबन 2 साल 3 साल के बाद आज मुलाकात हुई। अब उनको मैंने एक वजीफ़ा कभी बताया था, वजीफ़ा बहुत मुख्तसर है। हम अगर परेशानियों के शिकार हैं, मुसीबतों ने हमें घेर रखा है, कारोबारी उलझनों से हम लोग दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, तो हम भी इस अमल को कर सकते हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही वो मेरे पास आए, मुलाकात हुई, एक जगह बैठ के खाना खाया। उसके बाद कुछ कहने लगे, यार कुछ बताओ, तुम तो अमल में लग गए हो, अमलियात करने लगे हो, इसके शौकीन हो गए हो, हमें कुछ बताओ हम क्या करें। तो तुम भी कोई अमल कर लो भाई। ये बातें हमारी उनकी हो रही थी। और उसके बाद मैंने उनको एक वजीफ़ा बताया, या मुसब्बिबुल अस्बाब सब्बिब ली बिल खैर। 2 रकात नफिल पढ़ें कोई भी नमाज के बाद, और कम अज़ कम इस वजीफ़े को 1100 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 41 मरतबा। और ये वो वजीफ़ा, या मुसब्बिबुल अस्बाब या मुसब्बिबुल अस्बाब सब्बिब ली बिल खैर, इस वजीफ़े को करें गिरिया वजारी के साथ, अपने दिल की तड़प निकलती हो दिल से, और बैठ के पढ़ें तन्हाई के अंदर। कोई आपके सामने ना हो, कोई आपके साथ में ना हो, कोई आपके कमरे में ना हो, जहाँ बैठ के इसको पढ़ें। तो इस वजीफ़े को उन्होंने मुझे बताया आज कि मैंने वो अमल तकरीबन 1 साल तक किया, और फिर रास्ते मेरे ऐसे खुले कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रे के लिए एक बार मुझे किसी ने भेजा, किसी साहिब खैर ने। मैं यहाँ आया तो मेरी मुलाकात एक साहब से हुई। अरबी वो जानते थे, थोड़ी थोड़ी अरबी उन्होंने बोली, बात करी उनसे, अपनी परेशानी बताई। तो उन्होंने कहा कि अब वापस जाके दोबारा आओ, फिर आपको हम काम देते हैं। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ख़ास बात ये बताई, तो मुझे खुशी बहुत महसूस हुई। कुरान करीम का हर लफ्ज़, अस्माए हुस्ना के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, अमलियात में बहुत सारी खूबी हैं, बस कमी जो है वो हमारे अपने अंदर है, हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग ग़ीबतें करते हैं, जुगलखोरियाँ करते हैं, तानाज़नी करते हैं, इसमें लगे रहते हैं। नमाज़ें भी पढ़ ली, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, नमाज बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, इसका छुटकारा कभी नहीं है, इसको मुस्तक़िल पढ़ा जाए। और ये वजीफ़ा अगर कोई आदमी परेशान है तो वीडियो के अंदर लिख कर के हमसे इजाज़त हासिल कर सकते हैं, राब्ता फरमा सकते हैं, इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी होगी। कामयाबी के बाद आप लोग दुआएं देंगे। बस हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा सिस्टम आपकी दुआओं का तालिब है। आप दुआ फरमाते रहें। अल्लाह हमारा और आपका हाफ़िज़ नासिर